بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا خلیل کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کرائی۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ میں خدا کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ میرا گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اندازہ لگاؤ، ایک نبی مستری کا کام کرتا ہے اور مزدور ذبیح اللہ ہے، مستری خلیل اللہ، مزدور ذبیح اللہ ہے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ گاڑا پکڑانے والا، پتھر اٹھا کر دینے والا ذبیح اللہ، اور کھڑا ہو کر کے لگانے والا خلیل اللہ ہے، اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ اللہ ہے، اور جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اور سیدہ ہاجرہ کھانا لے کے آتی ہیں، سبحان اللہ، سارا خاندان۔ جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی اس گھر کو آباد فرما، اس گھر کو ساری دنیا میں مقبول ترین فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی، الہی میں نے بنا دیا، میں نے تعمیر کر دیا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ بے نیاز ذات تیری، احکم الحاکمین ذات تیری، پروردگار تو ہے، مالک کائنات تو ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دل کی تمناؤں کو جاننے والا کوئی نہیں، کون جانے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، بوڑھا آئے، اس گھر کا دیدار کرنے آئے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی عظمت کو دل میں بسا کے آئے، اس گھر کا احترام دل میں لے کے آئے، میں خلیل ہزاروں لاکھوں برس پہلے دعا کرتا ہوں، مولا جو اس گھر کا طواف کرنے آئے اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ پیش کی دعا ہو رہی ہے، ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں برس پہلے خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، جھولی خلیل اللہ کی ہے، خلیل دعا مانگنے والا، ذبیح اللہ آمین کہنے والا، سیدہ ہاجرہ آمین کہنے والی، سیدہ سارہ علیہ السلام آمین کہنے والی، دعا مانگنے والا خلیل ہے، آمین کہنے والا نبی کا خاندان ہے۔ پیش کی دعا، جو بھی یہاں چل کر آئے اس کا احترام کرتا ہوا آئے، اس کا اکرام کرتا ہوا آئے، میں خلیل دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ نبی کے خاندان نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، الہی جو جوان عمر کا آدمی اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کا اکرام کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس گھر کی عظمت کے لیے آئے، جو اس کا احترام کرے، میں دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اب خلیل نے آمین کہی، سیدہ ہاجرہ نے آمین کہی، سیدہ سارہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، میری تیری نجات کا انتظام ہو رہا ہے، ابھی ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری بخشش کے ذریعے بن رہے ہیں، ہماری نجات کے ذریعے بن رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی اور دعا کی، الہ العالمین او مالک کائنات، ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سیدہ ہاجرہ دعا کرتی ہے، الہی او مالک کائنات، او ہمارے پروردگار جو جوان عمر کی عورت آئے اس کا آنا ایسا قبول فرما، سر سے پاؤں تک جتنے گناہ ہو ساروں کو معاف کر دے۔ حضرت خلیل اللہ نے دعا فرمائی، اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام جو بوڑھی عمر کی ہو چکی تھی انہوں نے جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے پروردگار جو بوڑھی عمر کی عورت آئے، تیرے دربار میں آئے، حج کے لیے آئے، زیارت کے لیے آئے،
से वापस करना, गोया आज ही अपनी माँ की पेट से पैदा हुई। खलीलुल्लाह ने, ज़बीहुल्लाह ने आमीन कही। सारे खानदान ने अपनी अपनी उम्र के लोगों के लिए दुआएं मांग दी। अल्लाह हम सब का हिस्सा उनकी दुआ में अता फरमा दे। और जितने लोग हज के लिए गए हुए हैं, परवरदिगार सबका हज कबूल फरमाए। सब के अल्लाह पाक दौड़ धूप मेहनत कोशिश कबूल फरमाए। बड़ी बात है, बड़ी बात है, यूं ही नहीं वहां गाया जाता। मालिक बुलाता है तो आदमी गाता है। चनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी महीने में ख्वाब नजर आया, मेरी राह में सदका कर, कुर्बानी कर, 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर ख्वाब देखा, मेरी राह में कुर्बानी कर, मेरी राह में सदका कर, 100 ऊंट फिर कुर्बान कर दिए। 9वीं रात को जो आज की रात गुजरी, इसमें फिर ये अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे खलील उस चीज की कुर्बानी कर जो तुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब हो, सबसे ज्यादा प्यारी हो, सबसे ज्यादा अजीज हो, सबसे ज्यादा तेरे दिल को भाती हो, दिल पसंद हो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में खलील ने मसला समझ लिया। सुबह हुई, सोचा कि अगर हज़रत हाजरा को बताऊं तो औरत साथ है, कहीं घबरा ना जाए। एक ही बच्चा है, इतना खूबसूरत होनहार हसीन बच्चा है। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हुस्न का क्या कहना, जिसकी पेशानी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे नबुव्वत होगा, वो कितना हसीन होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से कहा कि किसी बहुत बड़ी जगह दावत पे जाना है, नहला धुलाकर सुथरे कपड़े पहनाकर बच्चे को तैयार कर दो। चुनांचे खुशी खुशी हज़रत हाजरा ने तैयार कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को साथ लेकर चल दिए। छुरी और रस्सी जो थी वो बगल में दबा ली। कुर्बानी करनी है ना बच्चे की, उस मौला को राजी करने के लिए, उस अल्लाह पाक की जात को खुश करने के लिए बच्चे के गले पे छुरी चलानी पड़ेगी। चलाऊंगा, तुझे राजी रखूंगा, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा। और करो, आज अल्लाह को राजी करने के लिए हम मामूली सी बात को भी छोड़ने को तैयार नहीं। जिसे ताश खेलने की आदत है वो ताश नहीं छोड़ता, जिसको जुए की आदत है वो जुआ नहीं छोड़ता, जिसको शराब की आदत है वो शराब नहीं छोड़ता, जिसको बदमाशी की आदत है वो बदमाशी नहीं छोड़ता, जो बेनमाज रहता है वो नमाज नहीं पढ़ता। और जालिमों, कहां मरोगे? आओ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो देखो। अल्लाह ने बच्चा मांगा तो कुर्बानी छुरी चला दी। घरवाली को नहीं बताया, घबरा ना जाए। इसी को अपील करता, उठा मुरसल, उठा मुरसल, इसी आलम में रस्सी और कबर लेकर पैतामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। अल्लाह पाक के हुक्म की तामील करने के लिए खलील रवाना है। अल्लाह पाक को खुश करने के लिए छुरी खुद ले ली, रस्सी भी खुद ले ली। इसलिए कहता उठा मुरसल, इसी आलम में रस्सी और कबर लेकर पैतामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। छुरी रस्सी ले ली, दिल बंद की उंगली पकड़ ली, फर्जंद को साथ ले लिया, तैयारी कर ली। बड़ी अजीब बात कही कमतर मरहूम ने भी, कहता है एक हाथ रस्सी दूजी छुरी, दिल बंद दी उंगली फड़ी। एक हाथ रस्सी दूजे छुरी, दिल बंद दी उंगली फड़ी। ए भी नबी ओ भी नबी, हद हो गई तामील दी। ए भी नबी ओ भी नबी, हद मुक गई तामील दी। तुर पे दो है भागा भरे रहमत ने जोश आमल लगा, दादा नबी पाक दा आज मर्तबे पावल लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल निकले, तैयारी कर ली। शैतान को बड़ी तकलीफ हुई मौला को राजी करने के लिए। अगर अपने बच्चों को ज़िबा करना शुरू कर दिया, ये तो बड़ा अजीम कारनामा होगा। शैतान आया, बाबा बनकर आया। अकाईद को तबाह करने वाले हमेशा बाबे ही बने फिरते, ईमान का बेड़ा गर्क करने वाले बाबे। खुदा को लोग नहीं मानते, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान की अजमत नहीं, हुजूर की शरीयत की अजमत नहीं, सहाबा किराम का इकराम नहीं, अहले बैत उज़्ज़ाम का इकराम नहीं, बाबों के पीछे लगे हुए। आया शैतान बाबा बनकर और पहले औरत के पास आया।
हाँ, ये बातों वाले मसले हमारे घरों में भी पहले औरतों के पास आते हैं। इतना बड़ा सोटा, सर पे पगड़ा, हाथ में तस्बीह नहीं तस्बा, और हजरत हाजरा के सामने आया। कहने लगा पुत्र किथे ही, बेटा कहाँ चला? लगा अपने अब्बा के साथ गया। कहाँ गया? कि यूं फरमा रहे थे कि बड़ी अजीम दावत है, बड़ी ऊंची जगह पे ही जाना है, इसलिए नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहना कर तैयार कर दो। मैंने तैयार कर दिया, अब्बा की उंगली पकड़ के गया है। दावत ना दावत, मुकंजन पक्के हुए हैं वहां। क्या? हजरत हाजरा के सामने कहने लगा ज़िबा करेगा, ज़िबा छुरी रस्सी साथ ले गया है, छुरी रस्सी साथ लेके गया है, गले पे छुरी चलाएगा अपने बच्चे के। हजरत हाजरा फरमाने लगी बदबख्त, आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाई? कौन है ऐसा? कमाल हो गया, कभी ना कभी चलो मजबूरी में सही, शैतान भी झूठ बोल दे, सच बोल देता है, झूठ को छोड़ देता है। मुसलमान कब्रों तक झूठ बोलने से भाग नहीं आते, कब्र तक झूठ नहीं छोड़ते, सच बोलना आता ही नहीं। इसीलिए मजदूब हर मौके पे जोड़ता है, हर वक्त बड़ी काम की बात करता है मजदूब अलैहि रहमत। इसलिए कहता बेफिक्र ना हुआ कर, नफ्स और शैतान खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आने जाए दीन और ईमान में खलल, बाद आ बदामल। अपनी नेकियों को संभाला कर, कहीं ऐसा ना हो कहीं कढ़ाई को आग ना लग जाए, बड़ी बलाए को आग ना लग जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल सबके रहमतुल्लाह अलैह आखिरी वक्त था तो यूं फरमा रहे थे अभी नहीं, अभी नहीं, अरबी में कहते थे, मैं तर्जुमा सुना रहा हूं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो वफात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा हजरत दुनिया तो मरते वक्त कलमा पड़ती है, आप ये क्या कह रहे थे कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं? फरमाया शैतान मेरे सिराने खड़ा हुआ था और कहता था अहमद बिन हंबल दुनिया को मैंने फंसाया, तू मेरे फंदे में नहीं आया, मैंने दुनिया को बर्बाद किया मगर तू मेरे फंदे में ना फंसा, तेरे इल्म ने, तेरे तकवे ने, तेरी परहेजगारी ने तुझे बचा लिया। तो मैं ये कह रहा था जालिम अभी तो सांस आ रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं इसलिए कहता था ठहर जा, ठहर जा, वक्त का इंतजार है मेरा ईमान पे खात्मा होने से। किसी ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को एक मर्तबा और ख्वाब में देखा। वो ख्वाब देखने वाला भी कैसा होगा? सारे कह दो सुभान अल्लाह। वो ख्वाब देखने वाला भी कैसा होगा? क्या देखा कि जन्नतुल फिरदौस के बीच में इमाम अहमद बिन हंबल खड़े हैं और बिल्कुल निगाह जमाए हुए अल्लाह पाक का दीदार फरमा रहे हैं, हर वक्त हर हाल अल्लाह का दीदार कर रहे हैं। तो ख्वाब देखने वाला कहता है मैंने पूछा इमाम अहमद बिन हंबल से कि सुना था कभी अल्लाह की ज़ियारत होगी, कभी अल्लाह का दीदार होगा, आप कुरान की कदर नहीं करते, कुरान वालों की कदर नहीं करते, अपनी आग में ही मरते फिरते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेके चले गए, शैतान हज़रत हाजरा को आके कहने लगा कत्ल करेगा, छुरी चलाएगा, ज़िबा करेगा, पूरा उसको इसलिए करनी पड़ रही है। उसका मतलब ये था कि हज़रत हाजरा भी रोएगी, पकड़ियो पकड़ियो, अरे इस बड़े मियाँ को पकड़ियो रे लोगों, अरे बच्चे को ज़िबा करने चला गया, इस बड़े मियाँ को, इस बुजुर्ग को पकड़ो, इस अल्लाह वाले को रोकियो रोकियो, फड़ियो फड़ियो, शोर मचा देगी हज़रत हाजरा, वो पैगंबर की घरवाली है। फरमाने लगी अल्लाह का हुक्म है कि हाँ, रोने लगी और फरमाने लगी खलील और अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने क्या किया? बच्चे को ले गए, खुद चले गए, मुझे औरत साथ समझ कर छोड़ गए, मुझे कमजोर समझ कर छोड़ गए, अरे मुझे भी साथ ले जाते, आप अपने अल्लाह के नाम पर अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाते, मैं हाथ पकड़ लेती, मेरा भी हिस्सा पड़ जाता, मैं भी हाथ पकड़ के बैठ जाती, कभी अल्लाह के नाम पर ज़िबा होते वक्त मेरा बेटा हरकत न करते। और शैतान को फरमाने लगी ये तो एक इस्माइल है, हजारों इस्माइल हो, सबको अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दो। फरमाने लगी बस कर लाइल अपनी कालो कील भी, और मैं भी तैयार हूँ, मेरा इस्माइल भी, हजारों इस्माइल हो, अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं।
कंकरियां मारी हैं हजरत हाजरा ने शैतान को, चुनांचे आज भी वहां कंकरियां मारनी पड़ती हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब आया और कहने लगा, बच्चा कहाँ चले हो? उन्होंने कहा अब्बा के साथ दावत में। उन्होंने कहा दावत ना, दावत ज़िबा करेगा तुझे। उसने कहा बदबख्त, कभी आज तक किसी बाप ने बच्चे को ज़िबा किया? उन्होंने कहा मजबूर है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह पाक का हुक्म है, मजबूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा अगर उसका हुक्म है तो कहा हुक्म उसका, मेरा गला मैं तो तैयार हूं, उसके नाम पर कुर्बान होने को मैं तैयार हूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां उठा के मारी, वहां भी मारनी पड़ती हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब आ गया और कहने लगा, देखो जी बुढ़ेपे की औलाद है, कितना खूबसूरत बच्चा है, नूरे नजर है, दफ्ते जिगर है, प्यारा बेटा है, और कुर्बानी कर दो और सदका कर दो और ऊंट ज़िबा कर दो। भला बच्चे को ज़िबा करना कोई अकलमंदी है? वो तो नबी थे, फौरन शैतान को कंकरियां मारी, चले गए। पहाड़ी के सामने बिठाया है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, ये करूंगा तो वही जो अल्लाह ने हुक्म दिया। पर देखो तो सही, नबी के आल में भी कुछ असर है, नबी के बेटे में भी कुछ असर है। बाप बेटे की जो वहां पहाड़ी पे गुफ्तगू हुई, अल्लाह पाक को उस पर प्यार आया, कुरान में नकल फरमा दिया। फरमाया फलम्मा बलग माअ साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, और मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, पहाड़ी पर से दिया आवाज, पहाड़ी पर से दिया आवाज, इस्माइल इधर आओ, खुदाए पाक का इरशाद यहाँ आकर सुन जाओ। सामने बिठा लिया और फरमाने लगे, पितर बोला कि बेटा आज, पितर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है, मैंने एक सपना देखा है, मैंने एक ख्वाब देखा है, ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबा करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। अन्नी अज़बहु फंज़ुर माज़ा तरा, तेरी क्या सलाह है, तेरा क्या मशवरा है, तेरा क्या इरादा है, तेरा क्या प्रोग्राम है मेरे लगते जिगर? मेरा तो ये प्रोग्राम है। आगे से आवाज आई, अबत फअल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। और मेरे बाप अब्बा जो हुक्म मिला है, देर न करो, जल्दी करो, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, साबित कदमों में से पाओगे, इस्तिकलाल वालों में से पाओगे। और दो मशवरे दिए हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, छोटी सी उम्र में, 6-7 साल की उम्र है। फरमाया अब्बा आप मेरे बाप हैं, मैं आपका लफ्ते जिगर हूँ, छुरी चलेगी, गला कटेगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, मुझे रोना आएगा, कहीं पिदरी शफकत बाप की मोहब्बत जोश में ना आ जाए, इसलिए आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना ताकि मेरी सूरत नजर ना आए और अल्लाह का हुक्म पूरा करने में ताखीर ना हो जाए। और मेरे हाथ पैर बांध देना, तवज्जो करो, मेरे हाथ पैर बांध देना, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त हरकत ना कर दो, कहीं वो नाराज ना हो जाए। आंखों पे पट्टी बांध ली, इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर लिया। ये नहीं कि हज़रत खलील रोए हो, हाय अब बच्चा चला जाएगा, जुदा हो जाएगा, अब कट जाएगा, या बेटा रोया हो। अंदाजा लगाओ, इसी को कहता फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन। क्या अजीब तर्जुमा किया हाफिज ने, कहता हुए अब हर तरह तैयार, हुए अब हर तरह तैयार, दोनों बाप और बेटा, छुरी इसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब्बा के पैरों में खुद ब खुद आके लेट गए और उन्होंने फिर सर पे प्यार नहीं किया, माथे पे बोसा नहीं दिया, इसलिए कहता पछाड़ा और घुटना सीने मासूम
पत्थर पर रगड़ी, हाथ को हुलकुम पर रखा, यूं गोडे के नीचे, घुटने के नीचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को दबा लिया और छुरी चलाई। अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दे दिया, खबरदार अगर एक बाल काटा, नीचे नबी है और वो नबी है जिसकी पुष्ट में से, जिसकी नस्ल में से मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी को अल्लाह ने धमकी दी, अगर एक बाल काट दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। और मुसलमानों, छुरी डर गई, हम कब्रों तक न डरे। छुरी ने ना कहा, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, छुरी चल रही है, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा शायद अल्लाह को ये मेरा मशवरा मंजूर नहीं, आप अपनी पट्टी खोल दें, शायद मौला को यूं मंजूर हो, बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले, यूं मंजूर हो। चुरा के पट्टी खोल दी गई, फिर भी छुरी चलाई, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे दिया कि छुरी की नोक रखकर मेरे गले पे नबूवत का सारा वजन डाल दो। चुनाचे ऐसा किया गया, छुरी लकड़ी के दस्ते में घुस गई, लकड़ी के दस्ते में थोड़ा सा रास्ता मिला, उसमें घुस गई, मगर नबी का बाल न काटा। बस आवाज आई, बना गई ना हो अय्या इब्राहिम, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कद सद्दत कर रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, इन्ना कदालिका नजज़िल मुहसिनीन, यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया, आसमानों में शोर मच गया, अर्श हिलने लग गया, आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया, खलील ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरहूब लगा, क़यामत तक अब ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमरे वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा, वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सामान दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है। अगर यही दूंगा उनको जो आज आपको बेटा ज़िबा करने पे मिला। इसीलिए हुक्म है कि जानवर सारे साल परवरिश करो, पालो। जिन लोगों ने दुम्बे बकरे घर में पाले, जब छुरी चलती है तो हर मर्द औरत रोने लग जाते हैं, औलाद जैसा प्यार हो जाता है उस जानवर से। और जब अल्लाह का नाम लेकर उसके गले पे छुरी चलती है, आंसू आ जाते हैं सबके, उधर उसकी बात निकलती है, उधर दिल दुखता है, मगर मौला को राजी करने के लिए उसको बर्दाश्त किया जाता है। हमें क्या पता चले, कल तो मंडी से लाए, आज ज़िबा कर दिया, परे के परे सारा काम हो गया, हमें क्या पता चला। न दिल पड़ा, न मोहब्बत हुई, न प्यार हुई। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे साल बछड़ी 2 साल पाला करते थे और फिर उसको ज़िबा करते तो हजरत की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। इसीलिए तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करो, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की हुजूर में नमाज पढ़ो, कुर्बानी कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जितनी आपकी उम्र शरीफ होती थी उतने ऊंट ज़िबा फरमाते थे और कुछ ऊंटों को लेकर ज़िबा फरमाते और यूं फरमाते, ये मेरे उन उम्मतियों की तरफ से हैं जो कुर्बानी कर नहीं सके, जो कुर्बानी कर नहीं सके। आजकल रस्मों के लिए तो पैसे हैं, फिल्मों के लिए तो पैसे हैं, एक प्रकारों में सर डालने के लिए तो पैसे हैं, टेलीविजन चलाने के लिए तो पैसे हैं, बदमाशी और फहाशी और बेहयाई के लिए तो पैसे हैं। अगर नहीं है तो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी के लिए पैसा नहीं है। बड़ा खुश होता बागा आदमी, चलो यार हिस्से के पैसे मैंने बचा लिए, चलो यार मैंने हिस्से के पैसे बचा लिए। मुझे ये पता नहीं तूने क्या बचाया, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है। आपको क्या मालूम है कि इससे क्या फवायद हासिल होते हैं और किस कदर परवरदिगार आलम खैर और बरकत अता फरमाते हैं। यूं लिखा बुजुर्गान दीन ने कि कुर्बानी के जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां नामे अमाल में लिख दी जाती है, उतनी नेकियां। तो अर्ज कर रहा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने हमें सारे का सारा मफ़हूम समझा दिया। और मेराज वाली रात में
اللہ پاک نے فرشتوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جنتی براق ہے، آپ سوار ہو جائیں. فرمایا میں سوار نہیں ہوتا. سارے کہو سبحان اللہ. فرمایا میں سوار نہیں ہوتا. کیوں؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، نیچے دوزخ ہوگا، بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط ہوگی، میری امت اس کے اوپر سے کیسے گزرے گی؟ 1500 سال تیز گھوڑے کی رفتار کا راستہ ہے. میری امت کا انتظام کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے پوچھنا دیا. اللہ پاک نے جواب دیا میرے محبوب راضی ہو جا، یہ جو قربانی میں تیری امت جانور ذبح کرے گی، میں ان جانوروں کو سواری بنا کر قیامت کے دن پیش کر دوں گا. تیرے امتی ان پہ سوار ہو کر پل صراط سے پار چلے جائیں گے. کس وقت کام آ رہے ہیں؟ کون سا عجیب کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ قربانی کو نہ چھوڑو. اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کون دنیا میں ہوگا، کون قبر میں ہوگا. ہزاروں لاکھوں لوگ پچھلے سال دنیا میں تھے. ابھی پرسوں یا لارے کے قریب ایک حادثہ ہوا، کئی رخصت ہو گئے. کل صبح کے وقت بھی ادھر بائی پاس سے پرلی طرف ہوا. 8 جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ملک میں. 8 10 12 2 4 مر رہے ہیں. نہ جانے ہم میں سے اگلی عید تک کون خبر میں ہوگا اور کون دنیا میں ہوگا. اس لیے نماز بھی اخلاص کے ساتھ پڑھو. نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری نماز ہوگی، کس کس کے لیے یہ آخری قربانی ہوگی. قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو، جولی پھیلاؤ، قبولیت کی دعا مانگو. اللہ پاک فرماتے ہیں خون کے قطرے زمین پہ بعد میں گرتے ہیں، میں پہلے قبول کر لیتا، میں پہلے قبول کر لیتا. اور ہر وقت دین و ایمان کے لیے قربانی پہ تیار رہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھبراہٹ والے دن میں یہ آواز لگے گی، 50,000 سال کے دن میں آواز لگے گی. اتنی لمبی لمبی زبان لٹکی ہوئی ہوں گی تو آواز لگے گی. جب ماں باپ بے اولاد کے اور اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی شوہر کی نہیں بنے گی، خامد بیوی کا نہیں بنے گا، اس دن کیا آواز لگے گی اللہ پاک کی طرف سے؟ آؤ میرے گھروں کو آباد کرنے والے آ جاؤ، میری مسجدوں کو آباد کرنے والے، بنانے والے، چمکانے والے، اس کی رونق بڑھانے والے آ جاؤ. تم دھوپ میں نہ کھڑے ہو، میرے عرش کے چھاؤں میں سائے میں آ جاؤ. کئی لوگ پاگل سمجھتے ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں نا، ایسے روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے یوں ہی لگا رہے ہیں، اتنے پنکھے، اتنا یہ اتنے. ان غریبوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دربار کس کا ہے. انہیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں، یہ کسی وکیل کا دربار نہیں، یہ کسی سفیر کا دربار نہیں، یہ کسی ذمہ دار اور سرمایہ دار کا دربار نہیں. یہ تو اس حاکم الحاکمین کا دربار ہے جو اپنے خدمت گزاروں کو قیامت میں آواز دے کر بلائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ یوں آواز لگے گی، کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں جھاڑو لگایا کرتے تھے؟ کبھی آواز آئے گی کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں پانی کا انتظام کیا کرتے تھے؟ تو اس وقت روئیں گے، پچھتاویں گے وہ لوگ جو سیانے بنتے ہیں، جو بڑے ہوشیار بنتے ہیں. تو اس وقت کے پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ، ہر کار خیر میں حصہ ڈالو، ہر جگہ کوشش کرتے چلو، اپنی سی ہمت کے مطابق کرتے چلو، چلتے چلو، موت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو جاؤ. اللہ پاک ہم سب کا کامل ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. سارا دن بتاتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ، قربانی کے 3 دن مکمل ہیں. قربانی آج بھی ثواب ایسا ہی، کل بھی ثواب ایسا ہی، پرسوں دن چھپنے سے پہلے تک. اور وہ تکبیر جو ہے وہ بھی پڑھتے رہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. چلتے پھرتے بھی پڑھو. اور ہر فرض نماز کے بعد مردوں پہ بھی واجب ہے، عورتوں پہ بھی واجب ہے. قربانی کرو، اللہ سے قبولیت کی دعا مانگو. مدارس میں طلباء کو کے لیے کھالے خود پہنچا کے آؤ، تاکہ جس کا دل اجازت دے وہ ہمارے مدرسے میں پہنچا دے. 100 مرتبہ جس کا دل اجازت دے خوشی پڑے. ورنہ اور طالب علموں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، جس کو دل چاہے دو، کوئی کسی کا اعتراض نہیں. اور قبولیت کا فکر کرو، نماز کی پابندی کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تکبیر نماز کی نیت سمجھ لیں. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب زائد 7-6 تکبیروں کے پیچھے
कहते होंगे हमारी तो समझ में नहीं आती, हमें तो ये कहना नहीं आता। गाने तो बड़े तुम्हें याद हो जाते हैं, बुड्ढों कब्रों में तैयार होने वालों को भी गाने तो बड़े याद है। कंजरियों के गाने याद हो जाते हैं, नमाज की नीयत याद नहीं होती। सारी जिंदगी गुजर गई, आज तक तुम्हें जनाजे की नीयत याद नहीं हुई। क्यों याद हो तुम्हें? तुमने कोई मरना है, तुम्हारी कोई मौत आएगी। तौबा तौबा तौबा, खुदा डरता है तुमसे, वो तुम्हें थोड़ी मार सकता है। यकीन सारी है, जनाजे की नीयत नहीं आती, ईद की नीयत नहीं आती, बताने से भी नहीं आती, और कंजरियों के गाने यूं ही आ जाते हैं। शर्म करो सफेद बाल वालों, तुम क्या लेते हो अब कंजरियों के गानों से? अब तो कब्र की तैयारी करो। 2 रकात नमाज ईद उल अजहा वाजिब जायद 7-6 तकबीरों के, यूं ही कह दो 2 रकात नमाज बकरा ईद, 6 तकबीरें ज्यादा कहूंगा, पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर, और फिर पहली नियत बांधो अल्लाहु अकबर, यूं हाथ यहां कानों की लो तक ले जाओ। बातें यूं कर देते हैं, ये भी जायज नहीं, और बातें यूं ही करते हैं, बड़ा शर्मीला बन जाता है। यूं कंधे तक ले गया अल्लाहु अकबर, और कई इधर उधर देखते रहते हैं कि इसने क्या किया, इसे नमाज ही नहीं होगी, इधर को देखने वाले की नमाज नहीं होगी। और साल में नमाज आई है, अगर यही बर्बाद होगी तो पढ़ने क्या पड़ेगा? मैं तो समझा रहा हूं, नीयत बांधो अल्लाहु अकबर, ये तो हमेशा की नीयत हो गई। अब सुभान अल्लाह पढ़ो, अब 3 दफा अल्लाहु अकबर कहते हुए यूं हाथ